Very good morning, students. Welcome in the new academic session. Before starting our first chapter of geography, 7th standard, Introduction to Topographical Maps, will take pledge in this pandemic period. So, all come with me to take this pledge. I, Kulvinder Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So after this pledge, we'll start our first chapter. It's from geography part, Introduction to Topographical Maps. I'll try to give vast introduction to topographical maps. Identify the purpose of topographical maps. Identify features on a topographical map sheet on the basis of colors. We'll try to explain all these things in this chapter. First, thinking cap. We can easily show the height of physical features like mountains and valleys in 3 dimensions. How do you think the cartographers represent the height of features on the 2-dimensional maps without even using colors? तो क्या है कि हम easily show कर सकते हैं किसी physical feature like mountain valley की height, breadth, है ना, in 3 dimensions में. मीन्स जब हम माउंटेन्स वैलीज़ को देखते हैं तो देखकर हमें पता चल जाता है कि इसकी हाइट कितनी है, ब्रेथ कितनी है ना, 3 डिमेंशन में. आप क्या सोचते हो कि जो कार्टोग्राफर्स जो मैप बनाते हैं वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन फीचर्स को, माउंटेन को, वैलीज़ को ऑन द 2-dimensional मैप्स विदाउट इवन यूजिंग कलर्स? कि वो 2-dimensional whose have only length and breadth. इस ऐसे 2-dimensional मैप्स के ऊपर वो कैसे माउंटेन्स और वैलीज ऑल फीचर्स जो है नेचुरल फीचर्स हैं उनकी हाइट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कि कैसे दिखाएंगे. ठीक है. A topographical or a survey map is a large-scale map showing great details of small areas with the help of specific colors and a fixed set of symbols called conventional symbols. तो क्या टोपोग्राफिकल क्या है? एक सर्वे मैप है, एक लार्ज स्केल मैप है जो हमें पूरी डिटेल दिखाता है एक छोटे से एरिए की. इसके साथ हम किसी भी एक एरिया पर फोकस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कलर्स स्पेसिफिक कलर्स दिखाए गए होंगे. एंड क्या होगा, कुछ सिंबल्स होंगे, कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स होंगे. एज लाइक मैप्स में आपने देखा है ना कि साइड में सिंबल्स बने होते हैं, कन्वेंशनल सिंबल्स बने होते हैं, कोई पिक्चर बनी होती है और हमें उसे देखकर पता चल जाता है कि मैप में ये वाली पिक्चर क्या रिप्रेजेंट करती है. सेम लाइक इन टोपोग्राफिकल मैप्स, सम फिक्स्ड सेट ऑफ सिंबल्स एंड कन्वेंशनल सिंबल्स. ठीक है. टोपोग्राफिकल मैप्स help you to visualize the shape of the ground in a region. These contains illustrations of a surface area to depict the accurate elevation of the geographical features. तो टोपोग्राफिकल मैप हमारी हेल्प करते हैं हमें दिखाने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए कि जिस हम रीजन की, जिस एरिए की हम बात कर रहे हैं उस एरिए की ज़मीन की शेप कैसी है. ठीक है. These contains illustration of surface area to depict the accurate elevation of the geographical features. तो illustrations, examples, बहुत से surface area में examples देकर
क्या किया जाता है, एक्यूरेट एलिवेशन ऑफ द ज्योग्राफिकल फीचर्स। तो जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, माउंटेन्स, वैलीज, डिप्रेशंस, ठीक है, उनको एक एलिवेशन के साथ दिखाया जाता है टोपोग्राफिकल मैप में। टोपो शीट्स कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फीचर्स लाइक। तो जो एक टोपो शीट होती है, टोपो शीट मिलती है आपको, वो हम यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फीचर्स। वो उस क्या रिप्रेजेंट करने के लिए टोपो शीट हम यूज़ करते हैं, नेचुरल फीचर्स भी और ह्यूमन मेड फीचर्स भी। नेचुरल फीचर्स मीन्स माउंटेन्स, वैली, स्लोप्स, ठीक है, लेक्स, रिवर्स, एवरीथिंग आर नेचुरल फीचर्स। एंड ह्यूमन मेड फीचर्स लाइक एज बिल्डिंग्स, है ना, रोड्स, रेलवेज, ह्यूमन मेड फीचर्स। फर्स्ट वन है रिलीफ। रिलीफ क्या है, व्हाट इज मीन बाय रिलीफ? रिलीफ में हम क्या डिस्कस करते हैं, माउंटेन्स, वैलीज, स्लोप्स, डिप्रेशंस एज डिफाइंड बाय कॉन्टूर्स। तो टोपोग्राफिकल मैप में रिलीफ्स रिप्रेजेंट होते हैं। रिलीफ मीन्स माउंटेन्स, वैलीज, स्लोप्स, डिप्रेशंस कैसे होते हैं, विद द हेल्प ऑफ कॉन्टूर्स, ठीक है। I'll give all explanation regarding contour in next also. नेक्स्ट है हाइड्रोग्राफी। हाइड्रोग्राफी मीन्स जिसमें क्या होता है, लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, स्वैम्स, रैपिड्स, फॉल्स, कोस्टल फ्लैट्स, ठीक है, रिलेटेड विद वाटर, हाइड्रोग्राफी। नेक्स्ट वन है वेजिटेशन। वेजिटेशन में हम क्या क्या करते हैं, वुडेड एंड क्लियर्ड एरियाज, विनयार्ड्स और ऑर्चार्ड्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे वेजिटेशन में कि कौन सा एरिया फॉरेस्ट वाला है, कौन सा क्लियर्ड एरिया है, एकदम साफ है, कहाँ वेल्स वगैरह है, बाग है, और कहाँ बगीचे हैं। ये वेजिटेशन रिप्रेजेंट करती है टोपोग्राफी। तो उसके बाद ट्रांसपोर्टेशंस भी रिप्रेजेंट होती हैं। ट्रांसपोर्टेशन में हम क्या देखेंगे, रोड्स, रेल्स, रेलवेज, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स, एवरीथिंग विल्स इन ट्रांसपोर्टेशन पार्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर्स में क्या होगा, बिल्डिंग्स, अर्बन डेवलपमेंट्स, पावर ट्रांसमिशन लाइंस, पाइपलाइंस, टावर्स, ठीक है। पावर ट्रांसमिशन लाइंस जो इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइन सप्लाई होती है। पाइपलाइन किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है, गैस के लिए पाइपलाइन हो सकती है ना। पाइप्स ड्रेनेज के लिए भी होती है पाइप्स वैसे, ठीक है। नेक्स्ट है बाउंड्रीज। बाउंड्रीज जो हर एक स्टेट की बाउंड्री होती है, कंट्री की बाउंड्री होती है ना, इंटरनेशनल, प्रोविंशियल, टेरिटोरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, रिक्रिएशनल, जियोग्राफिकल, all boundaries are also representing the topographical maps. Toponymy, place names, water feature names, landform names, boundary names, और ये पूरी समझ। तो टोपोनोमी के अंदर क्या आता है, किसी भी जगह का नेम, कोई वाटर फीचर नेम, वाटर की स्पेशल फीचर, लैंडफॉर्म नेम्स, लैंडफॉर्म का नेम क्या है, जो लैंडफॉर्म रिप्रेजेंट किए गए हैं उनके नेम क्या है, और बाउंड्रीज, जो बाउंड्रीज बनी गई हैं स्टेट्स के, जहाँ कंट्री की, उनके नेम क्या है। विल ऑल्सो डिस्कस in next toponymy part, will also discuss in the chapter. So a topographical map contains the same elements generally used in a non-topographical map like scale, legend and the north arrow. The map legend provides a complete listing of all features and their corresponding symbols. तो टोपोग्राफिकल मैप है, उसमें क्या होता है, सेम एलिमेंट्स होते हैं जो हम नॉन टोपोग्राफिकल मैप में भी यूज़ करते हैं। जैसे हम सिंपल मैप है तो उसमें हम स्केल होता है, लीजेंड होते हैं, लीजेंड पार्ट जो रिप्रेजेंट किए होते हैं, ऊपर लीजेंड दिखाई होती है पिक्चर्स बनाकर, है ना। एंड नॉर्थ एरोज दिखाए होते हैं कि ये एरो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरो ये रिप्रेजेंट करता है। ऑल दिस थिंग्स वी
we are using in topographical map also. Topographical maps are created and published by the National Mapping Agency of every country. तो हर एक कंट्री की जो टोपोग्राफिकल मैप्स क्रिएट किए जाते हैं वो हर एक कंट्री के अपने अपने पब्लिश किए जाते हैं. द सर्वे ऑफ इंडिया पब्लिश टोपोग्राफिकल मैप ऑफ आवर कंट्री. जो हमारी कंट्री है उसके टोपोग्राफिकल मैप कौन पब्लिश करता है? द सर्वे ऑफ इंडिया, SOI, द सर्वे ऑफ इंडिया. हमारी कंट्री के टोपोग्राफिकल मैप्स हैं जो पब्लिश करती है सर्वे ऑफ इंडिया, SOI. पर्पस ऑफ अ टोपोग्राफिकल मैप. A topographical map is generally used as a base map as it helps to draw other types of maps. Topo sheets are used by government agencies in urban planning, resource development and surveys. Hikers and climbers use topo sheets to calculate the height of roads, hills and mountains. तो टोपोग्राफिकल मैप जनरली हम एक बेस मैप के लिए यूज़ करते हैं और ये हमें हेल्प करता है अदर टाइप के मैप ड्रॉ करने के लिए. टोपो शीट्स आर यूज्ड बाय गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट है हमारी गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं वो टोपो शीट्स का यूज़ करती हैं किस चीज़ के लिए? अर्बन प्लानिंग, वो सिटीज़ की प्लानिंग के लिए, रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए एंड सर्वे के लिए. कोई सर्वे करना है उन्होंने, ठीक है, किसी भी चीज़ का पता करना है कि इस एरिया में कितने फॉरेस्ट है, कितने एरिया में फॉरेस्ट है, इस एरिया के माउंटेन्स की स्टैंडर्ड हाइट कितनी हो सकती है, मैक्सिमम मिनिमम. कोई भी सर्वे करना हो तो गवर्नमेंट एजेंसीज़ है वो टोपो शीट्स का यूज़ करती है. हाइकर्स एंड क्लाइंबर्स यूज टोपो शीट टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ रोड्स, हिल एंड माउंटेन्स. जो हाइकर्स हैं और क्लाइंबर्स हैं, हाइकर्स कौन होते हैं? अ पर्सन हु वर्क्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेज स्पेशली अक्रॉस अ कंट्री में जो घूमते हैं, जो लंबे लंबे डिस्टेंस कवर करते हैं. किस चीज़ के लिए? टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ रोड्स की हाइट कैलकुलेट करने के लिए, हिल्स एंड माउंटेन्स की. रोड्स की हाइट आप देखेंगे जब मैं आपको टोपोग्राफिकल शीट से शो करूँगी. हिल्स एंड माउंटेन्स का तो हम समझ सकते हैं, माउंटेन का ईजिली समझ सकते हैं कि माउंटेन जो है उसकी हाइट कैलकुलेट करने के लिए हाइकर्स एंड क्लाइंबर्स किसका यूज़ करते हैं? टोपो शीट का. ठीक है. So our content is only up to this much. In the next class we'll start the next content. With this, goodbye to all.